Yes, sir. Molecularity of a reaction. Another property of a reaction called molecularity helps in understanding its mechanism. The number of reacting species, atoms, ions, or molecules taking part in an elementary reaction, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction, is called molecularity of the reaction. The reaction can be unimolecular when one reacting species is involved, for example, decomposition of ammonium nitrate. ठीक है। सब लोग मेरे साथ एक देखेंगे, मैं एक हर लाइन से एनसीईआरटी कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है उसको देखिएगा बेटा। अगर इमेजिन करिए 3KClO3 गिव्स, या इसको कर दीजिए 4, और इसको कर दीजिए 3। थ्री KClO3 प्लस KCl कुछ है। आप सब लोग क्या इसका टाइप कर सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है? कैन यू टेल मी द मॉलिक्यूलरिटी? कैन यू टेल मी द मॉलिक्यूलरिटी? अच्छा, कुछ लोग 8 टाइप कर रहे हैं। 8 किसने टाइप करा? रिएक्शन है 4KClO3। आपको रिएक्टेंट से मतलब होता है, बोर्ड उस पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे रिएक्शन, स्क्रीन पे रिएक्शन लिखा हुआ है, स्क्रीन पे रिएक्शन गिवन है। देखिए, आपको प्रोडक्ट से कोई बहस नहीं है इसमें। अगर आपके रिएक्शन बैलेंस्ड है, अगर आपके रिएक्शन बैलेंस्ड है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से डिबेट है बेटा, बाकी किसी और चीज से कोई डिबेट नहीं। मतलब अपने दिमाग में ये बात बिठा ले, किसी और चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस्ड हो, आपको रिएक्टेंट के मोल से मतलब है। दैट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलरिटी। वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हियर इट इज, द आंसर इज 4। द आंसर इज 4। एरिस राशि जल्दी टाइप करना चाहिए। कर दिया। जल्दी टाइप करने का मतलब आप समझते हो। Biomolecular reactions. Biomolecular reactions involve simultaneous collision between two species, for example, dissociation of hydrogen iodide. 2HI gives H2 plus I2. Trimolecular or termolecular reactions. एक मिनट जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शन है बेटा, उसमें दो चीज ध्यान रखना बस। अगर आपको यहाँ पे कोई मेटल सरफेस दे दे बेटा, जैसे प्लैटिनम दे देगा, आपको गोल्ड दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो याद रखिएगा इन दैट केस जहां मेटल सरफेस दे दिया एरो के ऊपर, याद रखिएगा वो जीरो ऑर्डर बन जाता है। और अगर मेटल सरफेस नहीं दिया तो मोस्ट ऑफ द डिसोसिएशन रिएक्शन आपका सीधा का सीधा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि किसी भी कीमत पे इस चीज का ध्यान रहे कि कब वो फर्स्ट ऑर्डर बनता है। मैं पूरी लिस्ट आपके सामने रखूंगा, अभी से ये ध्यान रखिएगा कि मेटल सरफेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए एनीवे आगे बढ़ी। Trimolecular or termolecular reactions involve simultaneous collision between three reacting species. For example, 2NO plus O2 gives 2NO2. The probability that more than three molecules can collide and react simultaneously is very small. Hence, reactions with the molecularity 3 are very rare and slow to proceed. It is therefore evident that complex reactions involving more than three molecules in the stoichiometric equation must take place in more than one step. KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 gives KCl plus 3Fe2SO4 whole thrice plus 3H2O. This reaction which apparently एक सेकेंड इसका मॉलिक्यूलरिटी टाइप कीजिएगा।
इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी टाइप करें जल्दी से बेटा। थैंक यू सिविल। निम्रा थैंक यू बेटा। एरिस थैंक यू। गौरव थैंक यू। साहिल थैंक यू। प्रिंस सही है, गौरव सही है, वंशिका करेक्ट है। आगे बढ़ो। This reaction, which apparently seems to be of 10th order, is actually a second order reaction. This shows that this reaction takes place in several steps, which step controls the rate of the overall reaction. The question can be answered if we go through the mechanism of the reaction. For example, chances to win the relay race competition by a team depends upon the slowest person in the team. Similarly, the overall rate of the reaction is controlled by the slowest step in the reaction, called the rate determining step. Consider the decomposition of hydrogen peroxide, which is catalyzed by the iodide ion in an alkaline medium. 2H2O in presence of iodide ion in alkaline medium gives 2H2O plus O2. The rate equation for this reaction is found to be rate is equals to minus dH2O2 upon dt is equals to KH2O2 I minus. This reaction is first order with respect to both H2O2 and I minus. Evidences suggest that this reaction takes place in two steps. H2O2 plus I minus gives H2O plus IO minus. H2O2 plus IO minus gives H2O plus I minus plus O2. Both the steps are biomolecular elementary reactions. Species IO minus is called as an intermediate since it is formed during the course of the reaction, but not in the overall balanced equation. The first step, being slow, is the rate determining step. Thus, the rate of formation of intermediate will determine the rate of this reaction. Thus, from the discussion till now, we conclude the following points. Order of a reaction is an experimental quantity. It can be zero and even a fraction, but molecularity cannot be zero or non-integer. Order is applicable to elementary as well as complex reactions, whereas molecularity is applicable only for elementary reactions. For complex reaction, molecularity has no meaning. For मैं complex इसमें reaction, हाँ कंप्लीट कर दो। for complex reaction, order is given by the slowest step and molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction. देखो मैं आप सबको पहले से कहता था बेटा कि जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो रिले रेस का इसने एग्जांपल दिया है, बड़ा अच्छा एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है। लेकिन आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे तो एक ऐसी चीज मैकेनिज्म में फॉर्म करी जो कि एक्चुअली कहीं रिएक्शन में दिखाई नहीं दे रही। आईओ माइनस और आईओ माइनस ये दोनों स्टेट में है जो कैंसिल हो जा रहा है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि बेटा ऐसी चीजें बनती हैं जो कि इंटरमीडिएट कहलाती है। इंटरमीडिएट मतलब प्रोडक्ट में आपको चमकेगा नहीं, लेकिन वो बीच में बनता है निम्रा, और वो बनता है इसी वजह से उस रिएक्शन का एक सर्टेन मैकेनिज्म होता है, एक सर्टेन पाथ होता है, और जो भी इस दोनों स्टेप में से स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं, जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको अगर देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप तो स्लो स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी टाइप करिए कितना है। फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी टाइप करिए कितना है। सिविल बढ़िया, दिशिका बढ़िया, एरिस बढ़िया, गौरव बढ़िया, रौनक बढ़िया, साहिल बढ़िया, वंशिका बढ़िया। ठीक है वंशिका। और ऑर्डर कितना होगा फर्स्ट स्टेप का? ये बोला गया कि रिले रेस में जो पहला बंदा है वो स्लो स्टेप है, ऑर्डर भी 2 होएगा। H2O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? H2O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? H2O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? 1। एंड I माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? 1। और इसीलिए आप ROR इसका ऐसे लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू K, जो लिखा भी हुआ है आपको, H2O2 का पावर 1 एंड I माइनस का पावर 1। वो ध्यान रखिएगा ये आयंस भी हो सकता है बेटा,
मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आपका मैकेनिज्म कैसा है। अब आते हैं कि क्या यही दुनिया के सारे एग्जांपल्स हैं या हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा लर्न करना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनसीईआरटी में इतना ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, खासकर एंट्रेंस के लिए। सीबीएसई में आप सब जानते हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अब मैं आपको 2 पेज दिखा रहा हूं जो कि सच में जरूरी है आप सबके लिए। तो सब लोग देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, अब आपको यहाँ पे जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स कोट किए गए। अमोनिया, अब यहाँ मेंशन कीजिए जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए प्लैटिनम सरफेस है, दिख रहा है बेटा, और एचआई का डिकम्पोजिशन देखिएगा याद से, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सब में आएगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा कि क्या चेंज हो रहा है बेटा। यहाँ भी रिएक्शन हुई है, लेकिन एयू का सरफेस है। सर ये जीरो ऑर्डर होता कैसे है, इसको थोड़ा सा ध्यान से मैथमेटिकली देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इसका सबसे बेहतरीन की रेट जो अमोनिया का लिखा गया वो आपको नीचे दिख रहा हो, R is equals to K1 अमोनिया एंड R is equals to 1 डिनोमिनेटर में 1 प्लस K2 अमोनिया। अब 2 केस बन सकता है, अगर अमोनिया बहुत कम है, अगर अमोनिया बहुत कम है तो आपका KNH2 1 इज मच मच ग्रेटर देन अमोनिया के होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उस केस में अक्सर आपसे बोलेगा कि लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा, क्या ऑर्डर बदलता है कि नहीं प्रेशर चेंज करने से। बिल्कुल बदलता है बेटा, इसका एग्जांपल आप लाइव देख लीजिए, ये सब एंट्रेंस में बहुत काम आ जाता है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, 1 इज मच ग्रेटर देन दिस, तो ये नीचे वाला टर्म हट जाएगा और आपका बच जाएगा K1NH3 अपॉन 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है। तो याद रखिएगा, व्हेन प्रेशर ऑफ अमोनिया यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज वेरी स्मॉल, तो ये इस रिएक्शन को भी, जिसमें कि आप देख चुके हैं प्लैटिनम सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है। इसलिए रट के जाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रेशर का फर्क पड़ता है। जबकि यही अगर इमेजिन करिए कि अगर सेम चीज